ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भाषाओं की विभिन्नता में जज्बातों का संगम, जिसे हम लोग उर्दू में मुशायरा कहते हैं, इंग्लिश में लिरिकल नाइट कहते हैं, बंगला में आवृत्ति कहते हैं, और पंजाबी में क्या कहते हैं वो शहरी आपको बता देंगे। तो टुडे वी हैव विद अस स्वप्ना रॉय, Yunus Mohani, we have Zahid Iqbal, we have Sherry Sahara, and we have our very own Luma Yasin with me, Nausheen Baba Khan. हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है वो कोलकाता से हो रहा है, बंगाल से हो रहा है, तो बंगाली में हम लोग एक पोएम सुनेंगे स्वप्ना रॉय से। शी इज अ रिसर्च स्कॉलर in English literature from Vidyasagar University. Swapna, tell me very brief about yourself in 30 seconds and then you start your poem. One more thing before Swapna starts, उसका जो poem है वो औरतों को लेकर है। It's an आंदोलन, उसने CA को भी लिया है, उसने औरतों की पीड़ा को भी ली है, उसने गर्व को भी लिया है, उसने रेप को भी लिया है, उसने माँ के दूध को भी लिया है, उसने सब लिया है अपनी उस कविता में। तो बहुत ध्यान से स्वप्ना के आवृत्ति को, रेसिटेशन को आप लोग सुने। इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड देन यू बिगिन। নমস্কার, আমি স্বপ্না রায়। আমি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি থেকে। নওসিনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা কবিতার আসর তৈরি করার জন্য এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। থ্যাংক ইউ আরো একবার। আমি যে কবিতাটা পড়তে চলেছি, কবিতাটা আমার নিজের লেখা। কবিতার নাম কাগজ দেখতে চাও। কাগজ দেখতে চাও, এখনো তুমি কাগজের কথাই বলবে? যে কাগজে বস্তির খোলাপে চাঁদের কথা থাকে না, সেই কাগজ। যে অক্ষরে লেখা হয় না তৃতীয় লিঙ্গের কথা, আট পেটা ভুখা শিশুর ট্রাফিক সিগনালে গোলাপ বেচার কথা, কিংবা ব্রিজের তলায় শুয়ে থাকা অসহায় মানবতার কথা। লেখা থাকে না কুমারী মায়ের দেহ বিক্রির কথা, আর ড্রেনের জল থেকে ভাত ছেঁকে তোলা বিপন্ন শৈশবের কথাও। সেই কাগজ। লেখা থাকে না বেড়ার ঘরের লম্ফের আলোয় শান্তিতে ওঠা কচু শাক, গেড়ি গুগলি আর কিছু সিদ্ধের কথাও। রাস্তার কালো পিচে লেগে থাকে না ছাল চামড়া, আর ভেজা রেল লাইনের পাটিতে লেগে থাকা মৃত মানবতার কথা বলে না যে কাগজ, সেই কাগজ। এখনো তুমি দেখতে চাও? নাকি আজকের কাগজে লেখা থাক তোমায় আমায় মিলে পাল্টে দেওয়া কালকের আগামীটা, আর পড়ন্ত কোনো এক শীতের বিকেলে রেখে যাওয়া স্বপ্ন কালকের এক সভ্যতার, যে সভ্যতার ইতিহাসে শুধুই লেখা থাকবে মানবতার কথা। সভ্যতার হিংস্র বিভাজনের মারণ ভাইরাসকে আকণ্ঠ পান, আর নিংড়ে নেওয়া প্রাণবায়ুতে লন্ড ভন্ড করার কাহিনী, আর আর আসিফার কথা। প্ল্যাটফর্মে যে শিশু তার মৃত মায়ের আঁচল ধরে টানে এক ফোঁটা দুধের আশায়, তার কথা। ধর্ম, জাত, পাত, লিঙ্গের ঊর্ধ্বে ওঠা এক প্রজন্মের কথা, যে প্রজন্ম রুখে দাঁড়ায় মানবতাকে বুকে নিয়ে, নিঃশব্দতাকে বদলে দেয় মিছিলের বিক্ষোভে। মেকি সহানুভূতি আর ক্ষুধার্ত সভ্যতার বিবমিশা পেরিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ে দেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আর বলে যায় ভালোবাসার কথা, মানবতার কথা।
তাই প্রতি রাতে আমি ভালোবাসাকে দেখি আগামীর প্রত্যয়ে, বদলে দেবার অনুভবে মিশে থাকি এভাবেই। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি যখন আমি পড়েছিলাম এই কবিতাটা তোমার। আই এম সিরিয়াসলি বিং আ উইমেন, আমি খুব প্রাউড ফিল করছিলাম। এন্ড তুমি যেভাবে ইউ হ্যাভ দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ পোর্ট্রেড দ্যাট। At the same time, ये जब कविता पढ़े हैं ना तो लग रहा है कि करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स है वो सब आंखों के सामने से गुजर रहा है। जो हमने न्यूज में सुना, जो देख रहे हैं, स्पेशली वो प्लेटफॉर्म वाला जो बता रहे हैं, मतलब एक एक चीज वो करंट अफेयर लग रहा है कि आंखों के सामने से गुजर गया। मतलब इतना रियल, इतना रियल। बिल्कुल, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही फील कर रही थी जब मैंने इनकी कविता पढ़ी थी। तो एट दिस यंग एज, आई डोंट नो योर एज स्वप्ना, लेकिन बहुत प्यारा। आप जितनी सुंदर दिखती हैं, आपकी सोच भी उतनी ही सुंदर है, और आपने बोला भी बहुत सुंदर तरीके से। खैर सुंदरता की परिभाषा तो देखने वालों की आंखों में है। अभी तो बहुत ज्यादा ही अजीब अजीब चीजों को लोग सुंदर कहते हैं। खैर, हमारे लिए सुंदर वही है जिसकी लिखावट सुंदर हो, जो बोले सुंदर और जो देखे सुंदर। हर चीज जिसको सुंदर नजर आए, जो गलत देखे वो बदसूरत, जो अच्छाई देखे सिर्फ वही सुंदर। बिल्कुल, दिल की सुंदरता। ओके, वी हैव टुडे विद अस यूनुस मोहानी। यूनुस मोहानी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ही इज एन एडिटर। उनके बारे में आधा से ज्यादा लोग यहाँ जानते होंगे, और उनके कलम की जो ताकत है, मल्टीलिंगुअल तो वो खुद है। ये हमारा इवेंट मल्टीलिंगुअल है, बट बी इट हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उनकी पकड़ हर वो भाषा में है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि यूनुस सर आप प्लीज हिंदी को ले लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस सर। आई वुड लाइक कि आप एक मुद्दा, अभी जैसे स्वप्ना ने करंट अफेयर्स उठाया, इसी से रिलेटेड कुछ मुद्दा आपको अगर नजर आए कविता की भाषा में, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए यूनुस सर। शुक्रिया नौशीन, आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौका अता किया। इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं और आपका आंदोलन है, मैं उसको सलाम करता हूं। मैं उसी से रिलेटेड कुछ बात कहूंगा। तो शुरू करते हैं कि CA, NRC, NPR मुद्दा है, इस देश में बढ़ते बेरोजगार मुद्दा है। अजी सुनिए, वो बेचते हैं देश टुकड़ों में, हम देखते हैं सब बने लाचार मुद्दा है। आत्महत्या बस एक खबर भर है उनके लिए, किसानों की लाशों पे बनती सरकार मुद्दा है। गरीबों की दुर्दशा बस यूं समझिए, गर समझिए, उनको छुपाने के लिए बनी दीवार मुद्दा है। आपको याद होगा गुजरात में जिस तरह दीवार बनाई गई। जनता है सड़कों पर, वो मस्त बयानबाजी में, देश में खत्म होता रोजगार मुद्दा है। अभी हमने देखे थे वो पल भी, जो पैरों के छाले थे, अगर वो अमीर के बेटे होते तो शायद उनके लिए चार्टर्ड प्लेन होता। अब कहाँ इलाज पाओगे, यूं ही सिसक कर मर जाओगे। अस्पताल खुद हुए बीमार मुद्दा है, अस्पताल खुद हुए बीमार मुद्दा है। मंदिर मस्जिद सब बनेगी आखिर वोटों के लिए, जनता के सवालों पर सिर्फ राग मल्हार मुद्दा है। आप सब अमेज़न प्राइम पे वो जो बैंडेड वैनिश करके वो जो उनकी सीरीज चल रही है उसे देखें और राग मल्हार गाएं। दलितों को, आदिवासियों को कहां इंसान समझा जाता है। ये जुल्म आखिर कब थमेगा, जवाब दे सरकार मुद्दा है। सब दिखाएं कागज अपने, ये फरमान आम है, वो डिग्री नहीं दिखाते यही तो मेरे यार मुद्दा है। वो डिग्री नहीं दिखाते यही तो मेरे यार मुद्दा है। सब मजदूर गरीब किसान हैं परेशान, कैसे तरक्की कर रहे चार परिवार मुद्दा है। कैसे तरक्की कर रहे चार परिवार मुद्दा है। एक नहीं उनके स्वागत में खड़े होंगे 70 लाख, एक नहीं उनके स्वागत में खड़े होंगे 70 लाख। आ रहा है विदेश से जो उनका यार मुद्दा है, ये भी गुजरात में आपने देखा था। नफरत के पुजारी नफरत ही बांटेंगे, कैसे जीते अपना प्यार मुद्दा है। कैसे जीते अपना प्यार मुद्दा है। सिर्फ उनकी सुनो मत अपनी कहो, सिर्फ उनकी सुनो मत अपनी कहो। सवाल जो कर दिया
कहलाएं हम ही अपने मुल्क के गद्दार मुद्दा हैं, कहलाएं हम ही अपने मुल्क के गद्दार मुद्दा है। जवान हुई बेटी तो खेत बिक गया, जवान हुई बेटी तो खेत बिक गया, किसान है कितना लाचार मुद्दा है, एनआरसी सीए एनपीआर मुद्दा है, इस देश में बढ़ते बेरोजगार मुद्दा है। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हकीकत, मैं एक वर्ड बोलूंगी, हकीकत। हकीकत इज द वर्ड। मतलब पूरा पोल खोल किया, हर कुछ, हर एरा से, हर जगह से उठा करके लाखों के सामने लगा, हकीकत गुजर गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा था जो सर ने उठाया नहीं, छोड़ा हो, जो एग्जैक्टली जो उन्होंने छोड़ा हो, कौन सा ऐसा मुद्दा था? सुसाइड हो या कोई भी चीज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, अच्छा, साढ़े नाल शहरी सराहा जी हैं, वो पंजाब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुद्दा जब उठा है तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है, जो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उस मुद्दे के ऊपर, वो है गरीब का मुद्दा, वो है किसान का मुद्दा, वो है लाचार लोगों का मुद्दा, जिसकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता। और शहरी सहारे जी की पहचान ही यही है कि वो आवाज बनते हैं गरीबों की, मजदूरों की, और आज भी वो अपने कलम से, अपनी भाषा में, अपने तरीके से, वो जो होता है ना पंजाबी स्वैग में, कुछ दिल की बातें रखेंगे, कुछ हकीकत बयान करेंगे। वो हमारे दिल तक किस हद तक पहुंचता है हम देखेंगे। शही बात प्राजी एक बोलो तुसी। ਤੁਹਾਡਾ माइक अनम्यूट। पहले तो चंगा सी शेरीपा जी, चंगा सी अनम्यूट करो थोड़ा माइक। एक्चुअली सिहोरा, हाँ हाँ, ये सिहोरा, इनको शहरी सहारा इनका नाम है, सिहोरा इनके गांव का नाम है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल शहरी बारा जी। पहले तो सभी जो साथी इस फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, जो अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने दिलों के जो विचार हैं वो पूरे वर्ल्ड में अपनी भाषा में लेकर जा रहे हैं, और जो जी हमें जो प्लेटफॉर्म बाबा खान ने दिया है, इसका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो मैं आपके सामने पोएम सुनाऊंगा वो सिर्फ 4 लाइनों की है। 4 लाइनों का जो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं हर एक जो मैं कभी काम करता हूं, मैं हमेशा सस्पेंस छोड़ता हूं उसमें, कि मैं अपनी बात कह भी दूं और उसमें क्वेश्चन छोड़ भी दूं। ये मेरा हमेशा ही रहता है कि मैं हमेशा जो भी काम करूं उसमें क्वेश्चन छोड़ता हूं, कि जो मेरी बात सुनेगा वो अपना आंसर आप उससे खोजेगा। ये मेरा हमेशा ही रहता है। पहली बात जो अब मैं सुनाने जा रहा हूं, जो एट ए टाइम के हालात चल रहे हैं, जिन हालातों पे सर ने पहले बोला है, मैम ने पहले बोला है, तो सभी देश के जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो बोल रहे हैं। उनके नाम है, आपके नाम भी है, सभी के नाम, उनके नाम भी है। 4 लाइनें हैं। तो 4 लाइनों में क्या है, पहले तो एक जो वर्ड है मैं उसका आपको मीनिंग बता देता हूं, तो बाकी के सभी शब्द आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगे। जाचे, जाचे शब्द का मतलब होता है अपने आप को बड़ा आदमी समझना, गुरूर में, जिसको ईगो बोलते हैं, जिसको ईगो होती है अपने आप में, उसको जाचे बोलते हैं, जाचे। तो क्या है इसमें, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस सिर को, अपनी सोच को, उसको सलाम है कि सिर ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसका जो है मीनिंग है सब कविता का कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ इनकलाब के नारे नू बड़ा उच्चा बुलंद करके रखते। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दिल से आपने बोला शेरी। ये तो मैं बोलूंगी कि आपने बहुत ही दिल से बोला जो बिल्कुल हमारे दिल तक पहुंचा। ओके फाइन, हमारे साथ ये मेरा अकेला का इनिशिएटिव नहीं है, मैं सबको बता दूं, हमारे साथ पूरी टीम है। भले ही पेज मेरा हो लेकिन मेरे साथ जो लुमा बैठी हैं वो हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नुज़हत हैं जो जाहिद इकबाल की बहन है, यास्मीन मुरादाबाद से है, नाजिया ने भी ज्वाइन किया है, सद्दाम है, नसरीन है और बहुत सारी लड़कियां हैं। और हमारे साथ जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है टीम के वो है इमरान, जो अभी क्योंकि अभी उर्दू शेर पढ़ा जाएगा तो मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है तो मैं अभी इमरान को ऑनलाइन लूंगी और मैं खुद को रिमूव करूंगी और इमरान आएंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे जाहिद का। जाहिद के बारे में मैं क्या कहूँ कि जो भी रैलीज हो, स्लोगनियरिंग के मामले में अगर मैंने बहुत हद तक स्लोगनियरिंग सीखी है, मैं ये ओपन प्लेटफॉर्म में बोलूंगी, मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं, तो जाहिद जिस तरीके से स्लोगनियरिंग करते हैं एक सांस में, वो थकते नहीं है। मैं तो फिर भी थक जाती थी और बहुत कुछ मैंने जाहिद से सीखा है। तो जाहिद मैं इमरान को भी लूंगी और वो फिर लूमा और इमरान मिलकर कैरी फॉरवर्ड कर। हेलो एवरीवन। यस, जैसे नौशीन ने कहा कि जाहिद भाई के बारे में जैसा हमने जो ऐसा देखा था, हम लोग बहुत कुछ सीखने को है। ऑफ कोर्स आंदोलन के दौरान नौशीन और इस तरह के और भी लड़के जो स्लोगन देते थे, उसमें से जाहिद भाई एक अलग ही उनका एक पहचान है, मास्टर है स्लोगन में। तो मैं ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं, जाहिद भाई को मैं कंटिन्यू करने बोलूंगा। सॉरी, मैं अभी मैं ऑफिस से नहीं बोल रहा हूँ, बट सेशन स्टार्ट हो चुका है इसलिए मैं बीच रास्ते में ही बोल रहा हूँ। सो यू जाहिद भाई प्लीज कैरी ऑन। आवाज आ रही है मेरी? जाहिद भाई की स्टिल हाँ, आवाज आ रही हेलो है आपको? आवाज कट रही है इमरान अच्छा, भाई, मैं ज्यादा आपकी वक्त आवाज नहीं कट लेते हुए रही मैं है। आपसे ये कर रहा हूँ कि आप जाहिद भाई शुरू करें। हमने जिस तरह से आपको देखा है स्लोगनिंग करते हुए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और
सीखने के लिए कोई उम्र तो होती नहीं, किसी से भी सीख सकते हो, अच्छी चीज लेनी चाहिए। तो मैं ज्यादा वक्त लेते हैं, आप अपनी शुरू करें, आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इमरान आप थोड़ा म्यूट कर दो। जाहिद शुरू करें। जाहिद आपका म्यूट हो गया है शायद। सर आपका माइक म्यूट है। डिस्कनेक्ट हो गए। No, I guess okay, fine. There is some problem with Zahid, so we shall. What we'll do? There is some serious problem with Zahid. Okay, fine. Yunus sir, आपसे मुझे सुनना है कि आपने मुद्दा को उठा लिया। आपने एक बहुत अच्छी पोयम लिखी है, ट्रिब्यूट दिया है। नौशीन, होल्ड। यूनुस सर, गुड इवनिंग। मैंने आपको एड्रेस नहीं किया था। Now, Naushin, please carry on. You got a big fan following, sir. You got a big fan following, है ना? Yunus sir got a big fan following. Okay, we have Zahid now. Zahid, आपका कनेक्शन सही है? जी मेरा कनेक्शन ठीक है, आपको आवाज आ रही है? अब आप शुरू कीजिए जाहिद, टाइम वेस्ट बिना करते हुए शुरू कीजिए। स्टार्ट योर पोएम। आवाज आ रही है मेरी? बहुत साफ आ रही है जाहिद, आप स्टार्ट करें। आवाज आ रही है? आ रही है जाहिद, बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। आप स्टार्ट करें। आप शुरू करें। ओके। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की टीम का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 142वां दिन आप लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं इसको और अपने घरों से आवाज उठा रहे हैं। और अपने नाजरीन का खैर मकदम करना चाहूंगा, आप तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं उन लोगों का खैर मकदम है। मैं पहले डॉक्टर राहत इंदौरी को खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा कि 2 गज जमीन का वो तो जमींदार हो गया। उन्हीं का एक शेर था कि 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तुमने मुझको जमींदार कर दिया। उसी शेर के हवाले से है कि 2 गज जमीन का वो तो जमींदार हो गया, 2 गज जमीन का वो तो जमींदार हो गया, पर उर्दू अदब को अपना कर्जदार कर गया। लहजा था जिसका मुनफरिद अंदाज बेमिसाल, लहजा था जिसका मुनफरिद अंदाज बेमिसाल, बेबाक गुफ्तगू का वो शायर चला गया। हर आंख अश्क बार है हर दिल मलूल है, हर आंख अश्क बार है हर दिल मलूल है, अहदे जदीद का वो तर्जुमान चला गया। मिल्लत का दर्द दिल में आवाज में इनकलाब, मिल्लत का दर्द दिल में आवाज में इनकलाब, देकर दिलों को तलब वो राहत चला गया, देकर दिलों को तलब वो राहत चला गया। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने जो गाया, आपने जो अभी पढ़ा बहुत था, शुक्रिया, वो ऐसे लगी बहुत शुक्रिया की आवाज है। बिल्कुल, ये जो हमारे दिल की आवाज तो जो हम फील कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रही थी कि जाहिद ने हम सब की तरफ से वो काम किया है जो हम सब चाह रहे थे। शेरी ने बोला भी था कि डेडिकेट करते हैं इसको, लेकिन चूंकि हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी थी और अचानक से खबर आया था राहत इंदौरी साहब का, तो सीरियसली इट्स अ बिग लॉस। और मैं वापस आऊंगी यूनुस सर के पास। वो ये है सर कि आप और जाहिद एक्चुअली ट्रिब्यूट जो आप जब बोल लेंगे उसके बाद जाहिद कंटिन्यू करेंगे। जाहिद आप बिल्कुल यूनुस सर के बाद आप स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगी। यूनुस सर, आपने ट्रिब्यूट दिया है एक बहुत ही बढ़िया, जो औरतें धरने पर बैठी थी एंटी सीए प्रोटेस्ट में। आप हमारे पार्क सर्कस में भी आए थे
और जिस तरीके से आपने हमारी हौसला अफजाई की थी और आपने बाकायदा बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और उसके बाद में अभी आपने, मैंने चूंकि आपका पढ़ा है तो मैं जानती हूँ कि आपने बहुत अच्छी ट्रिब्यूट पेश की है। तो मैं चाहूंगी कि पहले यूनिस सर ट्रिब्यूट पेश करें उन औरतों को, और उसके बाद जाहिद, फिर आप यूनिस सर के बाद आप फिर उनको कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू। नौशीन, हिंदुस्तान की तारीख में जो ये 70 साल आज़ादी के बाद की तारीख है, उससे पहले भी जो आज़ादी मूवमेंट था उसमें भी औरतों की वो तादाद नहीं दिखी थी जो इस प्रोटेस्ट के बाद हमें उभर के नजर आई। और इस यूं कहेंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट की क़यादती औरतों के हाथ में थी, आप जैसी शाहीनों के हाथ में थी। तो मैं उनको सलाम करते हुए कहता हूँ कि कोहरे में डूबी सुबह, ठिठुरती रात, नाजुक होठों पे है इनकलाब की बात। कोहरे में डूबी सुबह, ठिठुरती रात, नाजुक होठों पे है इनकलाब की बात। माँ भी है, बहन भी, बेटी भी, नारी कर रही है बुलंद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ कोई लैला मजनू की किस्सा गोई नहीं है, यहाँ कोई लैला मजनू की किस्सा गोई नहीं है, सिर्फ अपने लिए सोचे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ अपने लिए सोचे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यकीनन ये जो माँ बहनें थीं, जो बेटियां थीं, ये मुल्क के लिए सोचने वाली थीं। हौसलों को यहाँ कर रहे हैं जिसके सितम भी सलाम, हौसलों को यहाँ कर रहे हैं जिसके सितम भी सलाम। यहाँ हर एक है ऐसा मुजाहिद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सर्द हवा खुला आसमां ठिठुरता दिसंबर, सर्द हवा खुला आसमां ठिठुरता दिसंबर। बचाने को मुल्क बैठे रहे सभी यूं ही सड़क पर, देखते देखते साले 9 आ गया। लग रही है अब भी यहाँ सदाए इनकलाब जिंदाबाद, लग रही हैं अब भी यहाँ सदाए इनकलाब जिंदाबाद। है गोद में शीर ख्वार भी, उस पर है पुलिस की मार भी, है गोद में शीर ख्वार भी, उस पर है पुलिस की मार भी। हाकिम है चुप, जुल्म की इंतहा है, हाकिम है चुप, जुल्म की इंतहा है। बस इसीलिए सड़कों पे है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सड़कों पे हैं बहन बेटियां, कैद में मुजाहिद तलबा नौजवान। जालिम है हाकिम, सोग में भारत माँ, जालिम है हाकिम, सोग में भारत माँ। इंसाफ की सदा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गुलाब सब सड़क पे हैं, जुल्म की गिरफ्त में हैं, गुलाब सब सड़क पर हैं, जुल्म की गिरफ्त में हैं, आलमे वहशत में हैं। है बस एक रास्ता, इनकलाब जिंदाबाद, है बस एक रास्ता, इनकलाब जिंदाबाद। जुल्म को मिटा ही देंगे, तुम देखना नफरतों को हरा ही देंगे, जुल्म को मिटा ही देंगे, तुम देखना नफरतों को हरा ही देंगे। हम अहले जुनू वतन को जन्नत बनाएंगे, इस वास्ते साहिल की है सदा, इनकलाब जिंदाबाद, इस वास्ते साहिल की है सदा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया नौशीन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वाकई में ले गए आप उस दौर पे, वाकई में जब हम ठंड से ठिठुरते थे, जहां बस ले गए वापस आप उस दौर। बिल्कुल बिल्कुल लूमा, यू कुड फील इट, राइट। यस यस बिल्कुल जाहिद, अब हम हिंदी में तो वो ले गए, उर्दू में आप हमें ले जाइए, क्योंकि ये भाषाओं का संगम है। तो भाषाओं से हम, जैसे हमारे जज्बात आपकी भाषा। बिल्कुल बिल्कुल जाहिद, अब आप ले जाइए हमें उस दौर पर। ओ गॉड, ओ गॉड अगेन जाहिद, ये क्या जाहिद के साथ हो रहा है? फाइन, कोई बात नहीं। आई वुड रिक्वेस्ट शेरी बाजी, आपका जो दूसरा शेर था छोटा सा, वो आप पढ़ दें जब तक जाहिद ज्वाइन कर रहे हैं हमें। जैसे सर ने बोला है कि इनकलाब जिंदाबाद, अपने आप में भी इनकलाब, लोगों में भी इनकलाब। और जब औरतों इनकलाब की बात करती हूँ तो ये हो नहीं सकता कि जब औरतों इनकलाब की बात करें तो इनकलाब ना आए, जब औरतें इनकलाब की बात करें तो इनकलाब ना आए। इनकलाब आता है, आया भी है। इस देश के तटीपार चौकीदार सब इस प्रोटेस्ट से डरे हैं। जो एनआरसी का हो चल रहा था, जो औरतों ने पूरे वर्ल्ड की स्थिति को, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था कि औरतों के बिना
कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। तो उन औरतों को सलाम है जिन औरतों ने दिल्ली के शाहीन बाग में, लुधियाना के, पंजाब के शाहीन बाग में, कोलकाता के शाहीन बाग में, पूरे देश के शाहीन बाग को बहुत ऊंचा लेकर गए। और जब मैं पोइम सुनाने जा रहा हूं आपको, वो उन औरतों को डेडिकेट है जिन औरतों ने इस एनआरसी के जो प्रोटेस्ट को बहुत जोश से, बहुत जोर से सफल किया और देश की सरकार को उनके मुंह की खानी पड़ी। उसके बारे में है कि इस च कोई शक नहीं, इस च कोई शक नहीं, जीवन एने डूंगे टोयां च डिग पिया है। इस च कोई शक नहीं, जीवन एने डूंगे टोयां च डिग गया है कि लोग के बेहोश लोग रातां नूं, कि बेहोश लोग रातां नूं खुदकुशियां बारे सोचदे ने, कि बेहोश लोग रातां नूं खुदकुशियां बारे सोचदे ने। ते मैं सोचदा हां, ते मैं सोचदा हां कि चौकीदारा करां, इन्हां नूं जागदे रखां। चौकीदारा करां तो भाव मैं उस चौकीदार की गल नहीं करता जो देश नूं खा रहा है, मैं उस चौकीदार की गल करदा जिस औरतां ने शाहीन बाग दे औरतां ने पूरे देश नूं जगाया, चौकीदारा करके जगाया। दिन रात बच्चियां ने, कई बच्चों ने उत्थे जन्म भी लिया शाहीन बाग दे विच। उन्हां औरतां ने जो चौकीदारा करिया, उन्हां औरतां ने जो लोकां नूं जागदे रखण दा चौकीदारा करिया, उस औरतां नूं सलाम। ते उस औरतां नूं डेडिकेट सी जो मैं तुहानूं जे पोएम सुनाई है कि मैं सोचदा हां चौकीदारा करां ते इन्हां नूं जागदे रखां। ये सी मेरी छोटी जी कविता कि मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया कि मैं हरेक कविता नूं बड़ा छोटा छोटा करके लेके आया कि ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। तो अगली कविता जब मैं बोलने तो मैं तो सुनावांगा थानू। सो बाबा साहब आगे की बात। आगे की बात बहुत खूब, कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत खूब, तो और हो भी रहा है हमारा, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम से पीछे मतलब ज्यादा चल रहे हैं। हमें इसको और 10 मिनट्स 12 मिनट्स में रैप अप करना पड़ेगा। हम जाहिद को सुन लेते हैं, फिर हम वापस जाएंगे यूनुस सर के पास और स्वप्ना का एक कपलेट हम सुनेंगे। जाहिद आप प्लीज अपना आप बोले और प्लीज डिस्कनेक्ट मत होइएगा इस बार प्लीज। 5 अगस्त जो कुछ हुआ, बस एक सवाल है, छोटी सी नज़्म में एक सवाल है कि तुम किस राम के भक्त हो, तुम किसके मानने वाले हो, तुम किस राम के भक्त हो, तुम किसके मानने वाले हो। वो राम के जिसके वजूद पर हिंदुस्तान को नाज है, वो राम के जिसने वचन की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया, वो राम के जिसने सीता के लिए रावण का विनाश किया, वो राम के जिसने वनवास चुना था, या वो राम के जिसने हिंसा को चुना था। वो राम के जिसने वनवास चुना था, या वो राम के जिसने हिंसा को चुना था। वो राम जो हिंसावादी था, आजाद देश का पहला आतंकवादी था। वो राम जो बापू का कातिल था, जो नफरत की कोख से जना था और नफरत में ही पला बढ़ा था। तुम किस राम के भक्त हो, तुम किसके मानने वाले हो, तुम किस राम के भक्त हो, तुम किसके मानने वाले हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आपको ट्रिब्यूट देना था, ट्रिब्यूट वाला तो बहुत ही अच्छा लिखा था जाहिद, लेकिन ये वाला थोड़ा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा यूनुस सर, आई विल कम बैक टू यू अगेन। आपने ट्रिब्यूट दे दिया, आपने मुद्दा उठा लिया, लेकिन आप से मुझे जो एक है कि सजेशन
क्योंकि मुद्दे उठाए गए हैं, ट्रिब्यूट दिए गए हैं, तो एक शायराना अंदाज में आप सजेस्ट कीजिए कि फिलहाल ये जो हालात हाजरा है जो भी है, आप इस पे कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए सर। यूनुस सर। नौशीन, हकीकत तो ये है कि तमाशा है सियासत का, बने हैं दुश्मन जान के। तमाशा है सियासत का, बने हैं दुश्मन जान के। ये बंदे रहीम के वो भक्त राम, ये बंदे रहीम के वो भक्त राम के। मेरा मशवरा सिर्फ इतना है कि कोई जय बोले, कोई लगाए इनकलाब का नारा, कोई जय बोले, कोई लगाए इनकलाब का नारा। सुन लो भारत तुमको प्यारा हमको प्यारा। राजनीति की चौसर पर नित नई चाल चले हैं, बाजी जीतने को नेता कर रहे बंटवारा। हिंदू बुरा न मुस्लिम बुरा, बुरा न सिख ईसाई है। हिंदू बुरा न मुस्लिम बुरा, बुरा न सिख ईसाई है। सत्ता के लिए ही जला देते ये मुल्क सारा। समय से आपस में मत उलझो, फिरका परस्तों को दें जवाब करारा। उठो भारत के लालों, फिरका परस्तों को दें जवाब करारा। आज उठो प्रण ले लें, शीश कटे तो कट जाए। आज उठो प्रण ले लें, शीश कटे तो कट जाए। छुपने नहीं देंगे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। चलो अब रार छोड़ें, आपस की तकरार छोड़ें। चलो अब रार छोड़ें, आपस की तकरार छोड़ें। जो चाहे भारत की जय बोले, जो चाहे गाए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्वप्ना, আমি এবার তোমার আই উইল টার্ন টু ইউ স্বপ্না। এবার তুমি বলো তোমার যদি কোনো সাজেশন আছে বা কিছু একটা একটা বাংলায় তুমি একটা কিছু বলে দিও। তারপর আমি একটা লিখেছি ছোট। হ্যাঁ বলো বলো। আমি প্রথমে যে কবিতাটা বলেছিলাম সেখানেও আমি মানবতার কথাই বলেছিলাম, আর আমি শেষটাও করতে চাই মানবতার কথাই বলে, যেখানে ধর্ম, জাত, পাত, লিঙ্গ, সমস্ত রকমের বৈষম্য, যত ভেদাভেদ আছে সমাজে, সমস্ত রকমের বৈষম্যকে মুছে ফেলে যাতে আগামী দিনে আমরা একটা নতুন সমাজ গড়তে পারি, সেই রকম একটা স্বপ্ন দেখিয়ে, সেই রকম একটা স্বপ্নের কথা বলে, আশার কথা বলে কয়েকটা লাইন। হ্যাঁ, বিক্ষোভের মিছিলে আর বিপ্লবের স্লোগানে মিশে যাক মানবতার সুর। মিছিল আর কাঁটা তার ছাপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটুক প্রেমে। ইতিহাসের পাতায় উঠে আসুক ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার ইতিহাস। তৃতীয় লিঙ্গের হাতে আসুক ন্যায় আর সাম্য। শিশুর থালায় পড়ুক ভাত আর হাতে পেন্সিল। আর আগামীতে মিলিয়ে যাক ঘৃণা, হিংসা, অস্পৃশ্যতা, নারী পুরুষ সমস্ত বৈষম্যের সমীকরণের কাগজ মিশে যাক, পুড়ে যাক আগামীতে। সাথে নিয়ে মানবতা, শুধুই মানবতা আর ভালোবাসা। ফ্যাসিবাদ বিপদ যাক আর ভালোবাসা থাক, সেটাই বলবো। খুব ভালো, খুব সুন্দর। अच्छा, I'll wrap up because it's almost 38 minutes. हमारे पास सिर्फ 7 minutes है। हम थोड़ा थोड़ा सजेशंस एक एक दो लाइन में सबसे लेंगे, और आई वुड रिक्वेस्ट कि सिर्फ दो लाइन में ही सजेशन हो। लुमा, क्या आप लिखा है? मैंने क्योंकि कुछ लिखा है अभी फिलहाल, तो कैन आई गो अहेड? यस यस, आपने क्या लिखा है? हेलो लुमा। ओके, हाँ हाँ हाँ, मैंने ये लिखा है, मैंने अपने बारे में हमारे बारे में लिखा है। तुमने अभी औरत की ताकत देखी कहाँ है? चेहरे पे हंसी तो देखी है, दिलों के अंदर तूफान देखी कहाँ है? कमजोर और अबला का जो तुम नाम देते हो, उसी की कोख में जज्बातों का संगम तुमने देखा कहाँ है? देखा है सदियों से मुआशरे से डरती औरत, देखा है सदियों से मुआशरे से डरती औरत, उसी औरत के कलम से मुआशरे को बदलते देखा कहाँ है? तो इस बार मुआशरा बदलने का टाइम आ गया है, सोसाइटी बदलने का टाइम आ गया है।
अगर आपको राजनीति बदलनी है, आपको राजनीति में अगर आना है, अगर आपको सियासत में कुछ बदलाव चाहिए, तो पहले मुआशरे से तब्दीली स्टार्ट होगी। पहले मुआशरा बदलिए। ये रूढ़िवाद, ये जो बरसों सदियों पुरानी जो दकियानूसी जो आप हमारे ऊपर थोपते हैं, पहले उसको बदलेंगे और हमारे पास जो औजार एग्जैक्टली और हम अपने कलम से बदलेंगे। हमारे पास कोई तलवार नहीं है, हमारे पास ये कलम है जो आज की औरत है, पढ़ी लिखी है, और जो नहीं भी पढ़ी लिखी है उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो वापस आएंगे छोटे छोटे। अगर स्वप्ना ने बोल दिया आई गो टू जाहिद अगेन, अगर छोटा सा कोई है आपके पास, देन आई विल रैप अप विथ यूनिसर। जाहिद गो अहेड। मैं बस एक नज़म आप लोगों के लिए। वतन की बेटियां तुझ पर हों हजारों सलाम, वतन की बेटियां तुझ पर हों हजारों सलाम, तेरी हिम्मत को, शुजात को, तेरी अजमत को सलाम, तेरी इफ़्फ़त को, असमत को, तेरी हुर्मत को सलाम। फातिमा तुम हो, सुरैया हो, तुम ही फूले हो, तुम ही झांसी हो, तुम ही आज की रजिया सुल्तान। कभी आयशी, कभी आयशा, कभी लदीदा बनकर, तुम ही चल दी थी सलाखों में सफूरा बनकर। पर न घबराई कभी जुल्म से, न छोड़ी हिम्मत, देख कर हौसलों को तेरी बातिल को हुई है वहशत। पर न तुमने दुश्मन की सफ़ों में है मचा दी हलचल, तुमने दुश्मन की सफ़ों में है मचा दी हलचल, देख कर हौसलों को तेरी बातिल को हुई, देख कर हौसलों को तेरी कैसे हुए हैं पागल। पर न घबराना कि अब जुल्म के दिन थोड़े हैं, पर न घबराना कि अब जुल्म के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आखिरी मिसरा जो है ये फैज अहमद फैज की नज़म का है, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाहिर आपका। यूनिस सर, आप इसको रैप अप करें। आप हमारा जो ये जज्बातों का संगम था, इसको एक धागे में पिरोकर आप हमारे सामने, बिकॉज आई कैन नॉट वेट टू हियर यू अगेन, इज टेकिंग मी समवेयर एल्स। तो ओवर टू यू यूनिस सर। यूनिस सर माइक आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए एक छोटी सी बात है, और ये बात इतनी, माइक इज ऑन। हेलो, ऑडिबल? यस ओके, स्टार्ट सर। बात बहुत छोटी सी है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। बात ये है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। और इस संगम का मतलब ही ये है कि हमारी जबानें अलग हो सकती, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हम जो जुल्म झेल रहे हैं वो यही तो है कि बर्फ की कलम से सूरज पर पानी लिखें, हाकिम का हुक्म है प्यासे सहरा पर पानी लिखें। हाकिम का हुक्म है प्यासे सहरा पर पानी लिखें, हो गई हैं ज़ईफ नौजवान आंखें, उनके लिए मशवरा है अश्कों से जवानी लिखें, उनके लिए मशवरा है अश्कों से जवानी लिखें। ये संगम, ये इसीलिए संगम है कि हम हर जबान के साथ आए और सिर्फ एक बात कहें कि इनकलाब जिंदाबाद। और हम इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे, इसे मोहब्बतों का गहवारा जैसे था वैसे ही रखेंगे। ये राम और रहीम का मुल्क है, ये वाहेगुरु कहने वालों के लिए भी है और ये हे गॉड कहने वालों के लिए भी है। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते से अगर एक भी रंग कम होगा तो हमें दुख है, और हम इसलिए सड़कों पे हैं क्योंकि हम एक भी रंग कम नहीं होने देना चाहते। हम सतरंगी जो हमारा आसमान है उसको सतरंगी रहने देना चाहते हैं, जो धरा हरी है उसे हरी रहने देना चाहते हैं। जहां सैलाब है वहां भी हम खड़े हैं, जहां तूफान है वहां भी हम खड़े हैं। हिंदुस्तान को हमसे खतरा नहीं है, हिंदुस्तान को उनसे खतरा है जो नफरत की आग लगाना चाहते हैं। हमारा संदेश इस संगम से सिर्फ इतना है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए, और हम मोहब्बतों के गुलदस्ते लेके आपके दरवाजे तक हैं। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी मैसेज कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल आपने पिरो दिया। लुमा, just end this up and we like I vote of thanks to everyone. Luma, vote of thanks please आप दे दीजिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया सबका यहाँ आना और हमें इस तरह से इनकरेज करना और इतनी अच्छी अच्छी बातें कहना। और मतलब आप लोग सब आई रिसिस्ट फ्रॉम होम की जबान बनकर आए हैं। जो हमारी सोच है
जिस तरह से हम इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को, तो एक हमेशा आते रहिए और इसी तरह से हमें जबान देते रहिए, क्योंकि इस चीज की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आप सबकी सपोर्ट। और देखने वाले भी जितने हमारे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी देर आप हमारे साथ लगे रहे और देखते रहे और बिल्कुल हमें सराहते रहे। बिल्कुल। तो स्वप्ना, स्लोगन जाहिर आप लगाइए स्लोगन। जी जी, चलिए जाहिर, एक एक इनकलाब का नारा तो बनता है। तो इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। यूनिसा, स्वप्ना रॉय, जाहिद इकबाल, शेरी सहारा, लूमा, एंड टू मी एज वेल, एंड आवर व्यूअर्स जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने देखा, थैंक्स अ लॉट। हमारी जबान, जैसे लूमा ने कहा, हमारी जबान बनते रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।